ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں میں خوش آمدید۔ تفصیلی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں آج ہونے والی اہم سماعت کی۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں بجلی کے بلوں میں بلدیہ عظمی کراچی کے میونسپل ٹیکس کی وصولی کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے کے ایم سی کو کے الیکٹرک کے ذریعے ٹیکس کی وصولی کرنے سے روک دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جبکہ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ کراچی میں صفائی تو ہو نہیں رہی کہ الیکٹرک ٹیکس بلوں میں کیوں وصول کر رہی ہے۔ شہری ٹیکس نہ دیں تو ان کی بجلی کٹ جائے گی کہ الیکٹرک کی گاڑیوں پر کچرا پھینکا جا رہا ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کا اپنا ریکوری سیل وصولی کرے۔ کراچی میں بجلی کے بلوں میں بلدیہ عظمی کراچی کے میونسپل ٹیکس کی وصولی کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے کے ایم سی کو کے الیکٹرک کے ذریعے ٹیکس کی وصولی سے روک دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جبکہ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ کراچی میں صفائی ہو نہیں رہی کہ الیکٹرک ٹیکس بلوں میں کیوں وصول کر رہی ہے۔ شہری ٹیکس نہ دیں تو ان کی بجلی کٹ جائے گی کہ الیکٹرک کی گاڑیوں پر کچرا پھینکا جا رہا ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کا اپنا ریکوری سیل وصولی کرے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ مرتضی وہاب کا ایڈمنسٹریٹر کراچی کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ کراچی شہر کے لیے دن دیکھا نہ رات، بس کام کیا۔ ہم نے کراچی والوں کے لیے سوچا، لیکن شاید کچھ لوگوں کو شہر کراچی میں کام ہوتا پسند نہیں تھا۔ جس بلدیہ عظمی کے لیے کہا کہ اختیارات نہیں، اسی نے شہر کو کام کر کے دکھایا۔ ہم نے شہر میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، بس یہ غلطی کی کہ پیسہ اپنی جیب میں نہیں ڈالا بلکہ شہر کے لیے کام کرنے کا سوچا۔ مرتضی وہاب نے یہ بھی کہا کہ میں نے غلطی یہ کی کہ جیب سے محبت نہیں کی بلکہ کے ایم سی سے محبت کی۔ میں اپنے عہدے پر مزید کام نہیں کر سکتا۔ جب حکومت کام کرتی ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ نے کے الیکٹرک کو کے ایم سی ٹیکس کی وصولی سے روک دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے عدالتی فیصلے سے دل برداشتہ ہو کر اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ سندھ اسمبلی کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی والے اب ٹیکس نہ دینے سے خوش ہو جائیں۔ نہ رہوں گا، نہ ٹیکس وصول کروں گا۔ وسیم اختر کے دور میں جو کے ایم سی ٹیکس 20 کروڑ اکٹھا ہوتا تھا، میں نے وہی ٹیکس 3.25 ارب روپے کراچی کی فلاح کے لیے جمع کرنا چاہا۔ وسیم اختر صاحب کے 4 سالہ حکومت میں جب وہ ماشاءاللہ کے ایم سی کے میئر تھے، میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، یہ ٹیکس لگا ہوا تھا اور کے ایم سی کا ٹارگٹ تھا کہ سال میں 1 ارب روپے کا اکٹھا کریں، 1 ارب، اور کے ایم سی اکٹھا کرتی تھی کتنا؟ 21 کروڑ روپے، 20 کروڑ روپے ایک سال میں۔ کراچی شہر جو پاکستان چلاتا ہے، اس کی بلدیہ عظمی 20 سے 21 کروڑ روپے اکٹھا کرتی تھی۔ 1 ارب کا ٹارگٹ تھا وسیم اختر صاحب کے اپنے کاغذات میں۔ 20% ریکوری، یعنی کہ پیسہ کہاں جاتا تھا وہ؟ وسیم اختر صاحب کے دور میں اور ماضی میں بھی یہ کام بلدیہ عظمی کراچی نے، کے ایم سی نے ایک پرائیویٹ کمپنی کو سونپا ہوا تھا، اور اس کا آخری معاہدہ وسیم اختر صاحب کے دور میں 2017 میں ہوا، جب کے ایم سی نے اسپرنٹ لمیٹڈ نامی کمپنی، پرائیویٹ کمپنی کو یہ ٹھیکہ دے دیا کہ بلدیہ عظمی کے بہاف پہ آپ یہ ٹیکس اکٹھا کرو گے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ عدلیہ نے مجھے کام سے روکا، ایسے روک ٹوک کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا۔ میری غلطی رہی، میں نے کراچی کی ترقی کے لیے اپنا سکون غارت کیا۔ میں نے جب مجھے ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا گیا، میں نے ایک اسٹریٹجی بنائی اس شہر کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی، وہ میری اسٹریٹجی تھی۔ اس اسٹریٹجی کے اوپر میں 1 سال عمل پیرا رہا۔ جو میرے پاس ایگزسٹنگ فنڈز اویلیبل تھے، اس سے میں جو چیزیں کر سکتا تھا میں نے کیا، اور ایک براڈ بیس ریفارمز کا پروگرام لانے کے لیے یہ ٹیکس کا سسٹم تبدیل کیا کہ آپ پیسہ نہ اکٹھا کریں، میں پیسہ نہ اکٹھا کروں، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں ہے۔ میری اخلاقی اقدار، میں نے کہا نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں عہدوں کا محتاج نہیں ہوں، یہ میرا شہر ہے۔ اس شہر کے لیے میں چاہتا تو میں بھی وسیم اختر کی طرح، عمران اسماعیل کی طرح کیفے پیالہ پہ کھڑا ہو کے بارشوں کے دوران پراٹھے کھاتا، چائے پیتا، کہ میرے پاس تو اختیار نہیں ہے۔
لیکن آپ کے کیمرے نے بھی دکھایا اور دنیا نے دیکھا کہ میں سڑکوں پر نظر آ رہا تھا پانی نکالتے ہوئے, رات کو 3 ساڑھے 3 بجے تک بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا. بیچ میں کووڈ ہوا, مجھے کووڈ کے دوران صرف 2 دن میں نے ریسٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ میری جاب اس بات کی مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں گھر جا کے بیٹھوں. ماسک لگائے, 2-3 لوگوں سے دور رہا, لیکن فیلڈ میں نظر آیا. صبح دن سٹارٹ کرتا, رات کو 3:30 بجے دن ختم کرتا تھا. یہ جو تانے وانے لوگ مارتے ہیں نا کہ شہر کا برا حال ہے, وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرتے, میں سڑک پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا. 1 منٹ, دل سے کام کر رہا تھا, اچھی نیت کے ساتھ کام کر رہا تھا, خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہا تھا. کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بننا اور خدمت کرنا میرے لیے باعث فخر ہے. شہر میں مجھ سے بہتر اور لوگ ہیں جو کام کریں گے. کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ احمد اسحاق, میٹرو 1 نیوز, کراچی. سندھ اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے مرتضی وہاب کے استعفے کے اعلان کو خوش آئند قرار دے دیا. خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ مرتضی وہاب کا فیصلہ دیر آید لیکن درست آید ہے. بطور ایڈمنسٹریٹر پی پی رہنما نے شہر کراچی کو تباہ کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی. مرتضی وہاب شہر کے لیے ایک ناکام ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے. ان کے دور میں شہر میں گندگی کے ڈھیر اور بارشوں کا پانی جمع تھا. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہے. قانون کی آڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے مفادات کو محفوظ کیا. عدالتیں بھی پیپلز پارٹی کی 2 نمبری سے واقف ہیں. تو دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت صرف اور صرف باتیں کرتی ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ صرف باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس وقت شہر میں بے شمار مسائل ہیں. ان کا سبب یہ ہے کہ حکومت اپنا کام پورا نہیں کر رہی. گٹر ابل رہے ہیں, سیوریج کا نظام درہم برہم ہے. اس شہر میں کوئی نظام نہیں ہے. کراچی کے عوام کے الیکٹرک کے بلوں سے بے حد پریشان ہے کہ الیکٹرک کو تمام پارٹیاں سپورٹ کر رہی ہیں. کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ہی پاکستان چلتا ہے. ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کرپٹ ترین ادارہ کے الیکٹرک کو میونسپل ٹیکس لینے پر لگا دیا گیا ہے جو خود سوئی گیس کا اربوں کا نا دہندہ ہے. عوام سے ہونے والی زیادتی پر عدالت سے رجوع کریں گے. انہوں نے ایک میونسپل چارجز بھی کے الیکٹرک کے بلوں میں لگا کر دینا شروع کر دیا. کراچی کے عوام ظاہر ہے اس پر بہت پریشان ہیں, اس لیے کہ الیکٹرک نے ویسے ہی ان کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے. میں آپ کو چند چیزیں ضرور بتانا چاہتا ہوں تاکہ نشاندہی کی جائے اور لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ کے ایم سی کے چارجز بلوں میں لگ ہی اس لیے نہیں سکتے کہ مرتضی وہاب صاحب یہ بتائیں, ناصر شاہ صاحب یہ بتائیں, مراد علی شاہ یہ بتائیں کہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں کہ الیکٹرک ڈیفالٹر ہے. یعنی پہلے کے ایس سی تھا, پھر کے الیکٹرک ہے, وہ کے ایم سی کا ڈیفالٹر ہے. ایک ادارے کے ڈیفالٹر سے آپ ایک سروس حاصل کر رہے ہیں 7% یا 10% پیسے دے کر, اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے چارجز وصول کریں جس نے پہلے ہی آپ کے پیسے نہیں دیے ہوئے. امیر جماعت اسلامی کراچی کہتے ہیں کہ پیپلز بس سروس کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹر غلط بیانی سے کام نہ لے. اسٹریٹ کرائم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. عوام مسلسل گولیوں اور لوٹ مار کا نشانہ بن رہے ہیں. وہ پیپلز بس سروس کے نام پر جو بسیں تھیں وہ کتنی تعداد میں کراچی میں چل رہی ہیں, جس کا بڑا شہرہ تھا کہ 260 بسیں آ گئیں, 230 بسیں آ گئیں. ذرا فگر تو بتائیں وہ, اور ان میں سے کس کس سائز کی کون سی بس چل رہی ہے, کتنی خراب پڑی ہوئی ہیں, کتنی کا کارڈ سسٹم خراب ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دکھاوے, اور کروڑوں روپے کے اشتہارات شاید اربوں روپے میں چلے گئے ہوں گے اس پیپلز بس سروس کے لیے. وہ بھی ہماری جیبوں پہ ڈاکہ مار کے اپنی پبلسٹی کرتے ہیں. آپ 15 سال میں آپ نے جو ہے ایک پینٹ دیا اور اس کو بھی آپ مشتہر اس طرح کر رہے ہیں جیسے آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. اس لیے اس بدترین صورتحال سے شہر کراچی کے لوگ دو چار ہیں. حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ شہر میں کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اورنج لائن منصوبہ ناقص منصوبہ ہے جسے عوام نے یکسر مسترد کر دیا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں اب بھی جاری ہیں, جبکہ ملک بھر میں سیلاب اور طوفانی بارشوں کے باعث مزید 2 افراد جان کی بازی ہار گئے.
NDMA के मुताबिक अब तक जाबाक अफराद की कुल तादाद 1638 हो गई। सैलाब और बारिशों से 14 जून से अब तक 11,03,800 मवेशी हलाक हुए, जबकि सैलाब और बारिशों से 14 जून से लेकर अब तक 12,865 अफराद जख्मी हुए। सैलाब और बारिशों से अब तक 20,49,000 से जायद घर मुकम्मल तबाह हो गए। और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पानी ROBD 3 में बह रहा है। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जनूबी दादू डिवीज़न में 4 से 7 फीट पानी कम हुआ है, जबकि शहरों में निकासी आप के अमल को मजीद तेज करना है, लोगों को वापस उनके घर भेजना है ताकि उनकी जिंदगी मामूल पर आ जाए। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि पानी की सतह भी 5 से 6 फीट हो गई है। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का सैलाब से जाबाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए माली मुआवनत का ऐलान। सिंध के वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत की पूरी मशीनरी रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। कहा कि मौसमियाती तब्दीली का बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ा, जबकि दुनिया को यहाँ मदद के लिए आना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल पर रिलीफ का काम जारी व सारी है। मुतासरीन के तबाह घरों को भी सिंध हुकूमत ही तामीर करेगी। सिंध आर्काइव कम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने सिंध हुकूमत की तरफ से सैलाब से जाबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए माली मुआवनत का ऐलान कर दिया। कहा कि मुतासरीन के तबाह घरों को भी सिंध हुकूमत ही तामीर करेगी। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ही 1 मिलियन जो है उसके लवाहिकीन को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। एक रिहेबिलिटेशन होगी, जिन लोगों के घर गिरे हैं, डैमेजेस हुए हैं, उनको घर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बना के देंगे। एक सवाल के जवाब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान के गलत कल्चर की वजह से 10 अफराद मदीना केस में 10-10 साल की सजा भुगत रहे हैं। मरियम औरंगजेब के वाक़े से सर शर्म से झुक गए हैं। मैं समझता हूं कि कल वाले वाक़े के बाद शर्म से सर हमारे झुक गए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं समझता हूं कि इससे बुरी मिसाल और कोई नहीं दी जा सकती कि एक खातून को एक गैर मुल्क में आप बैठकर जिस तरह उसकी ट्रोलिंग, जिस तरह उसकी हैरेसमेंट कर रहे हैं। मेरे इसमें 2 कंसर्न हैं, बिल्कुल सीरियसली बताओ। अल्लाह ना करे ये जो कल्चर इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाया है, एक उस कल्चर, ये मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं और किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर या किसी खुदा न खासा उस सोच के हिसाब से नहीं दे रहा हूं कि किसी साजिश के हिसाब से। ये जो कल्चर इमरान खान ने इशू किया है कि मस्जिद नबवी में भी यही हरकतें की गई और बरतानिया में सड़कों पर ये हरकतें की गई खातून के साथ, तो एक मेरी प्रेडिक्शन है और फोर्स ये अल्लाह करे ना हो कि ये चीज़ इमरान खान को खुद भी फेस करनी पड़ेगी। सूबाई वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि इसहाक डार और नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। ये उनका मुल्क है। नियाजी और उसके चाहने वालों को डॉक्टर की जरूरत है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सैलाब से मुतासर अफराद को हर सहूलत फराहम कर रहे हैं। सूबे के 24 अजला सख्त मुतासर हुए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से भरपूर फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर के ऑफिस में सैलाब से मुतासर इलाकों के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए हिदायतें दे रहे हैं और उन्होंने सख्ती से कहा है कि तमाम अफसरान मेरिट की बुनियाद पर तैनात किए जाएं। जो अफसर काम नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन, स्काफ, पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर्स को हिदायत दी है कि डी वाटरिंग के लिए 24 घंटे मशीनें
मशीनें चलाई जाएं। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली सैयद जावेद अली शाह, रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर महरीन भुट्टो, रुकन सिंध असम्बली मुनव्वर अली वसान समेत दीगर मुताल्लिका इदारों के अफसरान ने सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को मसाइल, तजावीज़ और मुशावरत से आगाह किया। उनका मजीद कहना था कि जल्द होने वाले नुकसान के सिलसिले में असेसमेंट शुरू किया जाएगा। सिंध हुकूमत मुतासरा इलाकों में आरओ प्लांट और हैंड पंप भी फराहम करेगी। नासिर हुसैन शाह ने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि ज़िले इंतज़ामिया से हमा वक्त राब्ते में रहें। इजलास में रुकन कौमी असम्बली सैयद जावेद अली शाह, डॉक्टर महरीन भुट्टो, रुकन सिंध असम्बली मुनव्वर वसान, MNA पीर सैयद फजल अली शाह के नुमाइंदे पीर सैयद अफजल अली शाह, डिप्टी कमिश्नर शर्जील नूर, SSP मीर रुहेल खोसो समेत तमाम मुताल्लिका इदारों के अफसरान बड़ी तादाद में मौजूद थे। चीनी कंपनी ने सूबा सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली फरियाल तालपुर कहती हैं कि चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि पाक चीन दोस्ती की बुनियाद कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर और MP फरियाल तालपुर से चीनी कौंसल खाने और चीनी कंपनी पोर्ट एंड शिपिंग कंपनी के नुमाइंदों ने मुलाकात की, जबकि मुलाकात के दौरान सैलाब की सूरत हाल और इसके नतीजे में होने वाले नुकसान के सदबाब पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने पाकिस्तान में सैलाब के नतीजे में होने वाले नुकसान पर गहरे अफसोस और दुख का इजहार किया। मुलाकात के दौरान चीनी कंपनी ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया। वफ़द ने गुफ्तगू में फरियाल तालपुर ने हुकूमत चीन और चीनी अवाम की जानिब से पाकिस्तान के लिए बर वक्त इमदाद पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि पाक चीन दोस्ती की बुनियाद कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बतौर वज़ीर आज़म दो तरफ़ा ताल्लुकात को कसीरुल जहती शोबों में वसअत दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के विजन की शक्ल में दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियाँ फराहम की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हालिया दौरे चीन के दौरान हुकूमत चीन का फ़राग़ दिलाना ताउन हर पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। फरियाल तालपुर का कहना था कि इस पर कोई दो राय नहीं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से ज्यादा मीठी है। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी हो सारी है। लाड़काना, सक्कर, नवाबशाह, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, हैदराबाद समेत दीगर मुतासर इलाकों में खैमा बस्तियाँ कायम कर दी गई हैं, जबकि मुतासरीन को खाना, पानी, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं, जबकि बीमार जानवरों के इलाज और मुआवजे की सहूलत भी दी जा रही है।
और दीगर अशिया फराहम की गई। मुतासरीन ने हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। बरसात में असांजे घर वर किरी आहे न, सिंध हुकूमत जी महिरबानी जेका टेंट सिटी हिते क़ाइमु करे ॾिना, जेके असीं हिते वेठा आहियूं, असांखे हर शइ जी सहूलियत आहे, पंहिंजा बचा वठी असीं हिते वेठा आहियूं। भला इहो सिंध हुकूमत जी महिरबानी। उधर हमारे गांव में पानी भरा हुआ है बहुत, हमारे जो घर है जो भी है, हमारा गांव है बड़ा, सो वो सारा पानी में डूबा हुआ है। तो उधर से हम अब ये आए, कासमाबाद स्कूल है वेदत कॉलोनी से, बड़ा सरकार ने दिया है, हम इधर बैठे हैं। पूर्ण मुतासर जे करे असीं परेशान हुयासीं। सिंध हुकूमत जी महिरबानी आहे जिन टेंटूं वेंटूं लॻाए ॾिनियूं, खाधे पीते साफ़ पाणी जो हर शइ जो सहूलियत ॾिनी, वधीक सिंध हुकूमत जी महिरबानी। सिंध गवर्नमेंट असांखे टेंट लॻाए ॾिना आहिनि, खाधो पीतो ॾियनि पिया, पाणी ॾियनि पिया, हर शइ ॾियनि पिया। इन जा असीं थोराइता आहियूं, महिरबानियूं आहिनि जो असांजा बच्चा असीं कॾहिं पाणी मां निकिरी आया आहियूं। सैलाब मुतासरीन के लिए दीगर सहूलतों के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए झूले का इंतजाम भी किया गया। वज़ीर इत्तलाअत सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक मुतासरीन को अब तक 3 लाख से जायद खेमे, 3 लाख के करीब तरपालें, 23 लाख से जायद मच्छरदानियाँ, 7 लाख लीटर से जायद पीने का साफ पानी और 50,000 के करीब स्लीपिंग मैट, दीगर इमदादी सामान भी फराहम कर दिया गया है। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि सैलाब मुतासरा तमाम अफराद की माली इमदाद के साथ इनके सरों पर छत भी फराहम की जाए, जिसके लिए पानी उतरने के साथ ही काम शुरू कर दिया जाएगा। सूबा सिंध के वज़ीर इत्तलाअत व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि रेड लाइन प्रोजेक्ट की लागत 505 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है। सिंध हुकूमत चाहती है कि प्रोजेक्ट की लागत ना बढ़े और प्रोजेक्ट वक्त पर ही मुकम्मल हो। प्रोजेक्ट के किसी भी पार्टनर की तरफ से ताख़ीर हो तो जवाबदेह है शहरियों के मफाद में प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील के लिए मुश्तरका कोशिशें लेनी है। सिंध के वज़ीर इत्तलाअत व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ट्रांस कराची के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया। इस दौरान बोर्ड का हर माह कम अज़ कम एक इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया गया। इब्तदाई तौर पर बोर्ड के हर महीने 2 इजलास मुनक़िद किए जाएंगे ताकि प्रोजेक्ट के मामलात को मज़ीद तेज़ किया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रेड लाइन प्रोजेक्ट की लागत 505 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है। बढ़ती इन्फ्लेशन से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ रही है। सिंध हुकूमत चाहती है कि प्रोजेक्ट की लागत ना बढ़े और प्रोजेक्ट वक्त पर ही मुकम्मल हो। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के किसी भी पार्टनर की तरफ से ताख़ीर हो तो वो जवाबदेह है। टीम वर्क में काम करेंगे तो चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। शहरियों के मफाद में प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील के लिए मुश्तरका कोशिशें लेनी है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तमाम फैसलों में बोर्ड को एतमाद में लिया जाए। इजलास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, MD सिंध मास ट्रांजिट कैप्टन रिटायर्ड अल्ताफ सारियो, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी, सरोज हशमत लोधी, रुखसाना राजा, CEO ट्रांस कराची वासिफ जलाल, शुमाइल सिकंदर और दीगर भी मौजूद थे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और UK बेस NGO OTR फंड के वफ्द ने लाहौर में कचरा रिसाइकल करने वाली कंपनी ग्रीन अर्थ रिसाइकलिंग प्लांट अर्थ ग्रीन और MM ट्रेडर्स का मुतालाती दौरा किया। ग्रीन अर्थ के डायरेक्टर बाबर अजीज भट्टी और मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट सैयद बिलाल तरमीजी से मुलाकात के मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निज़ामानी का कहना था कि प्लांट पाकिस्तान में टेट्रा पैक को रिसाइकल करने का बड़ा प्लांट है, जहां टेट्रा पैक और प्लास्टिक को रिसाइकल करके पार्कों के लिए बेंचेस और बच्चों के खेलने के लिए माहौल दोस्त फर्नीचर्स और दीगर अशिया तैयार की जा रही हैं, जबकि मजीद मसनूआत भी इनके प्लान में शामिल हैं। उन्होंने रिसाइकलिंग के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जो भी कचरा आता है सब रिसाइकल करते हैं, कुछ भी लैंडफिल साइट नहीं भेजते। उनका मजीद कहना था कि अभी हम कुछ सोसाइटीज़ का कचरा जमा करके रिसाइकल कर रहे हैं, जबकि मुस्तकबिल में मजीद सोसाइटीज़ से कचरा लेने और आगाही पर काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी फैज़ मोहम्मद शेख कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी अय्याम में उन तमाम मकामात जहाँ महफिल मिलाद का इनकाद, जलसा, जुलूस और खुसूसी मजाजत के अतराफ खुसूसी सफाई सुथराई, जुलूस की गुजरगाहों की मुरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी के साथ साथ जरासीम कुश अद्वियात और डेंगू के खात्मे के लिए स्प्रे का खुसूसी इंतज़ाम किया जा रहा है।
म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया केमाड़ी बाबर अली मंगरानी के हमरा मुख्तलिफ उलमाए कराम के वफ़द से इजलास के बाद मुलाकात के मौके पर उलमाए कराम के वफ़द और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया केमाड़ी बाबर अली मंगरानी के हमरा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया केमाड़ी का कहना था कि तमाम अफसरान और मातहत उलमाए कराम से राब्ते में रहें और किसी भी शिकायत का फौरी अजाला मुमकिन बनाएं। सिंध बुजुर्गान दीन और औलिया कराम की धरती है जिनकी तालीमात का अव्वलीन पैगाम आकाए नामदार सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है। हमारी जिम्मेदारी है कि 12 रबीउल अव्वल को शायान शान तरीके से मनाना और अपनी अकीदत का दिल की गहराइयों से इजहार करें। इजलास में ज़िला केमाड़ी में मौजूद तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। इजलास में ज़िला केमाड़ी में मौजूदा मसाइल और उनके हल के लिए गौर व फिक्र किया गया, जबकि उलमाए कराम ने मुख्तलिफ मसाइल से एडमिनिस्ट्रेटर केमाड़ी और म्यूनिसिपल कमिश्नर को आगाह किया, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया केमाड़ी फैज़ मोहम्मद शेख ने अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जबकि आखिर में एडमिनिस्ट्रेटर ने जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान केमाड़ी के सदर मोहम्मद हबीबुल्लाह कादरी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद कुरैशी और दावत इस्लामी बल्दिया केमाड़ी टाउन के अमीर कासिम अत्तारी और दीगर जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि जब तक स्ट्रीट लाइट्स की दस्तयाबी नहीं होती, शिकायत के अजाले के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट ईस हम्माद एंडी खान और दीगर अफसरान के हमरा गुलशन इकबाल में M&D स्टोर रूम का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि स्टोर रूम में मौजूद जो अशिया काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। स्ट्रीट लाइट, शेड समेत दीगर सामान को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, जो कि शिकायत के अजाले में कारआमद साबित हो सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जब तक स्ट्रीट लाइट्स की दस्तयाबी नहीं होती, शिकायत के अजाले के हवाले से हर मुमकिन इकदाम यकीनी बनाए जाएँ। इस मौके पर सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज़ भुट्टो ने उन्हें महकमा M&D के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दस्तयाब सामान के जरिए काम किए जा रहे हैं। सामान की फराहमी के बाद काम की रफ्तार में मजीद तेज़ी आएगी। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर DMCEs की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर AEE मोहम्मद हारून खान भी मौजूद थे। इस मौके पर सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज़ भुट्टो और दीगर भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर वैस गुलाम कादिर तालपुर की ज़ेर सदारत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इजलास का इनकाद हुआ। इजलास में ज़िला गरबी में मौजूद तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की, जबकि इजलास में ज़िला गरबी में मौजूद मसाइल और उनके हल के लिए गौर व खौज़ भी किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीर हसन के हमरा माह रबीउल अव्वल के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर वैस गुलाम कादिर तालपुर का कहना था कि महफिल मिलाद का इनकाद जलसा जुलूस और खुसूसन मसाजिद के अतराफ खुसूसी सफाई सुथराई, जुलूसों की गुजरगाहों की मुरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी के साथ साथ जरासीम कुश अद्वियात और डेंगू के खात्मे के लिए स्प्रे का खुसूस इंतज़ाम किया जा रहा है। तमाम अफसरान और अहलकार उलमाए कराम से राब्ते में रहें और किसी भी शिकायत का फौरी अजाला मुमकिन बनाए। इजलास में उलमाए कराम ने मुख्तलिफ मसाइल से डिप्टी कमिश्नर वेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर वेस्ट को आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी हल तलब मसाइल के हल के लिए ठोस इकदाम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी को हिदायत की। जबकि इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीर हसन, म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर रहपूटो, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर यूटिलिटी सर्विसेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुतालिका हुक्काम ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर गरबी सैयद शबीर हसन ने उलमाए कराम को मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला बस्ती तहा सलीम कहते हैं कि ज़िला बस्ती में 35 करोड़ रुपए की लागत से KDA के 4 तरक्याती मंसूबे आगाज़ के लिए तैयार हैं। KMC रेन एमरजेंसी फंड से शारा पाकिस्तान समेत ज़िले की दीगर तबाहल सड़कों को बहाल किया जा रहा है।
KDA नॉर्थ नाज़िमाबाद चौरंगी तक बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नाज़िमाबाद में पाबंदी के बावजूद रोड कटिंग करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती तहा सलीम का कहना था कि ज़िला वस्ती में गैर कानूनी रोड कटिंग समेत किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में KDA, KMC और DMC की जानिब से तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। मेगा प्रोजेक्ट UBL के तहत शारा नूर जहां समेत नमक बैंक तक पीपल्स चौरंगी सड़क की तामीर शामिल है। हुकूमत सिंध ज़िला वस्ती में सड़कों की तामीर नौ और मुरम्मत के कामों पर खती रकम खर्च कर रही है। तहा सलीम ने मुतालिका महकमे के अफसरान को हिदायत की कि रोड कटिंग के काम को फौरी रोका जाए और गैर कानूनी रोड कटिंग करने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। DMC के भी काम काफ़ी सारे लाइन में थे, बारिश ऐसे नहीं हो पा रहे थे और अभी रबी अव्वल की वजह से हमने वो शुरू कर दी। तो जो इंटरनल रोड्स हैं वो DMC के साथ हो रही हैं। बाकी KDA के 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन ग्राउंड काम हो रहे हैं, जिसमें कम बेश 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी और जिससे वेरियस रोड्स मेजर रोड्स बन रहे हैं। उसके अलावा KMC को जो एमरजेंसी रेन फंड्स के हिसाब से काम हो रहा है तो उसमें मेन शारा है पाकिस्तान और जो मेजर सड़कें हमारी तबाह हुई हैं उसका काम हो रहा है। उसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट के अंदर से UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाली रोड बन रही है। जितने रूट्स पीपल बस सर्विस पे आते हैं उन पर रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है और उसके अलावा शारा नूर जहाँ पे काम हो रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नमक बैंक का काम शुरू हो चुका है, पीपल चौरंगी टू नमक बैंक। तो बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हमारा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह रोडों का जाल बिछाया जा रहा है पूरे ज़िले बस्ती में, जो जिसमें हमारा इंशाल्लाह रबी अव्वल भी कवर हो जाएगा और DMC के, KMC के, KDA के और मेगा के सारे प्रोजेक्ट जब मिल के आएंगे विदाउट एनी डुप्लीकेशन तो ज़िला बस्ती। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि दुनिया जिसकी आमद की बदौलत आबाद हुई है उस अजीम हस्ती की विलादत का जश्न मनाना हमारे लिए बाइस फ़ख्र और बाइस एजाज़ है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हम उनके शायान शान इंतज़ामात कर ही नहीं सकते, मगर जो कुछ हमारे बस में है वो ज़रूर करें। रबीउल अव्वल के सिलसिले में किए जाने वाले इंतज़ामात के हवाले से होने वाले इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों का कहना था कि हम खुश नसीब हैं कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है, जिसके सबब हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू होंगे। विलादत के सिलसिले में हर मकतब फ़िक्र के लोग मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद करेंगे। अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दी जाएँ तो हमारा माशरा बुलंदी की तरफ गामजन होगा। उनका मज़ीद कहना था कि गैर मुस्लिम तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ का सारा हुकूमती सिस्टम कुरान पाक और सीरत नबी के मुताले के बाद चला जा रहा है, वहाँ आम आदमी के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सैयद अफजल जैदी की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड महकमा इंसदाद तजावुजात बल्दिया उज़्मा कराची इमरान अहमद राजपूत की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल के हवाले से इजलास मुनक़्क़िद किया गया। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सैयद अफजल जैदी की हिदायत पर माह रबीउल अव्वल के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत का कहना था कि रबीउल अव्वल में तजावुजात के हवाले से कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में तमाम अफसरान को हिदायत दी कि माह रबीउल अव्वल बाबरकत महीने में मुनक़्क़िदा जलसा और जुलूस के अतराफ और गुजरगाहों, रोड और फुटपाथ पर गैर कानूनी कायम तजावुजात, ठेले पथारे, नाकारा गाड़ियाँ और दीगर तजावुजात को फौरी हटाया जाए और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाए। इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लख्ताबाद डाखाना PIB कॉलोनी, 3 हट्टी, MA जिना रोड, नुमाइश यूनिवर्सिटी रोड, गोलीमार और दीगर इलाकों में कायम तजावुजात का खात्मा किया जाए। इसके अलावा तमाम अफसरान इलाक़ाई सतह पर उलमाए कराम से मुलाकात करके उनकी मुशावरत से शिकायत दूर करें और तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही।